Well, in this video, we will discuss about article number 6.12 of NCRT, and the heading of this article is collisions. Okay, heading is the collisions, right? So we have studied so far. अभी तक हमने पढ़ा है कि मोशन क्या होता है, और मोशन के बारे में हमने पढ़ा है कि मोशन इज द इट इज़ द चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी. It is the change in state of a body. Change in state of a body. Motion is the change in state of a body, right? So अभी तक हमने कुछ क्वांटिटीज पढ़ी, जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा. So we have studied so many quantities, but we are trying to discuss few quantities. Those remain कांस्टेंट ड्यूरिंग ए फिजिकल प्रोसेस. कुछ एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जो एक फिजिकल प्रोसेस में अनचेंज रह जाती है, एंड दीज क्वांटिटीज आर मोमेंटम एंड एनर्जी. So these quantities are those remain unchanged in the process. The quantities remain unchanged in a physical process. In a physical process, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी प्रोसेस में चेंज नहीं होती है, these are momentum and energy. These are momentum and energy. So अब हम एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे, law of conservation of momentum and law of conservation of energy. So be here use the law of conservation of momentum, law of conservation of, we will study about law of conservation of momentum and law of conservation of we will study about law of conservation of energy. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, और कोई एक फिजिकल प्रोसेस हम देखेंगे जिसमें इसकी हेल्प से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. अब हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. और इसी के लिए हमें जिस फिज़िकल प्रोसेस को डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी उसी का नाम है कोलिजन, जो हमारा अभी आर्टिकल है जिसको हमने डिस्कस करना है, राइट. सो वी विल मेक द यूज़ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ द कोलिजन. सो सबसे पहले आप अगले पेज पर चलिए, और अगले पेज पर हम नए तरीके से इस बात को फिर जारी रखते हैं. देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कोलिजन के बारे में. वी विल डिस्कस अबाउट कोलिजन. सो द कोलिजन, फॉर द सेक ऑफ द कोलिजन, हियर यू हैव सीन द कोलिजन को आपने कहाँ देखा है, किस किस फॉर्म में देखा है, और किस अवस्था का नाम कोलिजन होता है, कैसी घटना का नाम कोलिजन होता है, हम इसके बारे में भी बात करते हैं. देखिए, आपने बिलियर्ड्स देखा है, यू हैव सीन बिलियर्ड्स, प्लेयर्स आर प्लेइंग बिलियर्ड्स, बच्चे कंचे खेलते हैं, ठीक है, मार्बल्स एंड और कैरम, you might have played carom, right? So these are all the examples of the collision. So here on we will discuss the collision of the two masses. अब हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आपके साथ, we will study the collision of two masses. We will take on the collision of these two masses. For example, we will take one mass and we'll take another mass. So we'll take on the collision of the two masses. So one mass is of mass m1 and having this velocity v1, and then another mass is m2 having some velocity v2, right? So we will apply the law of conservation of momentum and law of conservation of energy over there, and we will try to conclude something from this process. So I would like to share one image with you.
Here you can see the collision process about which we are going to study, जिसके बारे में अभी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ये हमारे पास ये दो मासेस रहेंगे, इन मासेस को हम सेलेक्ट करें। ये देखिए ये हमारे पास है, दिस इज द मास m1, राइट। दिस इज मास m1 एंड दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी b1i। b1i मींस इनिशियल वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी। जो ये मास है इसकी शुरू की वेलोसिटी कितनी है, so you can represent it like this, v1i। so this is v1i is the initial velocity of this mass, okay, and this mass will strike in this mass m2. So and then in this case we are studying about this two-dimensional motion. So you required some plane which has two coordinates. The way one coordinate is x and another coordinate is y. So when this mass m1 will strike in this mass m2, it may be in rest and it may be in motion, and then these two masses will fly off in the different directions. One mass is going like this as you're watching the diagram. जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, एक मास जो है वो जो मास m1 है जो इसमें टकरा रहा है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। और ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ उसका जो वेलोसिटी है, दिस इज v1i, and then its velocity will change and this will become b1 final. So there is a change in velocity, but mass will still remain the same. m1 will remain m1, and it fly off in the direction θ1 with respect to x-axis, and the m2 will go in this direction. Not necessarily, it can go in any direction while making certain angle with reference to the x-axis, and its velocity is now v2f, and it fly off at an angle of θ2 with respect to x-axis. So now see here carefully what is happening. Now there are few parameters. This is mass mass m1 and m2, but we are having over here in this diagram we are having masses, two masses, m1 and m2. So there are two masses, m1 and m2, and there are velocities b1i and b1 final, and then b2 final, and then third parameter is θ1 and θ2. So what is our objective now? We will now try to develop the relation between m1 m2, b1i, b1 final and b2 final, and θ1 and θ2. So our objective is now to connect the relationship, to develop the relationship which connect the masses. हम एक ऐसा रिलेशनशिप तैयार करेंगे, एक ऐसा मैथमेटिकल लैंग्वेज हम बनाएंगे जो इन दो मासेस को, इन तीन तरह की वेलोसिटीज को और इन एंगल्स को रिलेट करेगा, कनेक्ट करेगा। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि किस तरीके से इसको आगे कनेक्ट किया जाएगा। ओके, so we will now move forward for this discussion. Now discuss about the elastic and inelastic collision. For that sake we have to go to the next page. Okay, so well, we will now discuss about the elastic and inelastic collision. This is 6.12.1. 6.12.1. We will discuss about elastic and inelastic. Elastic and inelastic collisions. We will now discuss about the elastic and inelastic collisions. Okay, so अभी हम आपके साथ हमने बात किया था कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम आपके साथ बात शेयर करना चाहते हैं कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा जो है वो कंजर्व रहता है। So total linear momentum is conserved in all kind of collisions. So in all kind of collision, total linear momentum
total linear momentum always remain conserved. In all kind of collision, total linear momentum always remain conserved. So this is a physical process. अब इसका हम मतलब आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं. आपको ये समझ आना चाहिए कि टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है. इसका मतलब क्या है? तो हम आपके साथ एक इमेज का सहारा लेके इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए. इस डायग्राम को देखने के बाद आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का पता होना चाहिए. टोटल लीनियर मोमेंटम किसी कोलिजन में हमेशा कंजर्व रहता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो सिचुएशन है. एक है इनिशियल टकराने से पहले और टकराने के बाद. जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि कुछ हम ऐसे बना देते हैं, आपको आसानी लगेगी. ये देखिए, एक ये मास है और ये दूसरा मास है. दिस इज सेकेंड मास, राइट? सो दीज टू मासेस and after some time these two masses will collide with one another like this, okay? और टकराने के बाद one mass will go in this direction and another mass will go in this direction. So this is all about this diagram I'm talking about. So see here, ये जो मास है इसका, ये मास m1, इसकी जो वेलोसिटी है ये है v1i, right? Initial velocity of the mass m1 and this mass m2, इसकी initial velocity है v2i and this is equal to 0. भाई, because this mass in state of rest is in state of rest. ये mass rest में है, इसका मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा कि इसकी initial velocity 0 है and this is the time of collision. इतने टाइम में ये जो दोनों पार्टिकल हैं वो टकराते हैं. At the time of collision, this is collision time. ये बहुत थोड़े समय के लिए टकराते हैं and the time of collision is, this collision is very very small, delta t. और इस समय होगा क्या? ये जो मास m1 है, this is mass m1 and this is mass m2, right? So ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. अब इस मास के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा फोर्स ऑन द सेकेंड मास बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मास, और उसकी डायरेक्शन इधर को होगी. और ये इस पे ऊपर क्या होगा? ये होगा फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकेंड मास. दिस इज लाइक दिस एंड दिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस फॉर वेरी स्मॉल टाइम, डेल्टा टी. देखिए, टकराने के बाद अब आपको हम इनिशियली ये समझ रहे हैं कि यहाँ क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि ये वाला मोमेंटम यहाँ ये टकराए और टकराने के बाद वाला जो मोमेंटम है ये दोनों सेम रहते हैं. टकराने के बाद क्या होगा? जो मास m1 है, दिस मास m1 विल फ्लाई ऑफ इन दिस डायरेक्शन, दिस मास m1 विल फ्लाई ऑफ इज इन दिस डायरेक्शन and this mass m2 will fly off in this direction and at certain angle. This is theta 1 and theta 2. So this will go at an angle theta 1 and this will go at an angle theta 2. So what is actually happening over here? देखिए, this mass m1 will now have the velocity b1. This is the final velocity, and this mass m2 will now have the velocity v2 final. So now what is the law of conservation of linear momentum? आप मोमेंटम जानते हो. मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी. इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज द मास इनटू वेलोसिटी, राइट? सो अब आप इसको यहाँ लगाइए कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा. इसका इनिशियल मोमेंटम है, ये होगा यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कि इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. पहले हमें ये समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है. तो इसका मोमेंटम निकालें जरा. ये क्या आ जाएगा? दिस इज m1. ये फार्मूला ये रहेगा,
ये पहले का हम मोमेंटम निकालेंगे m1, दिस इज v1 इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी, प्लस दूसरा आ जाएगा आपके पास दूसरा मास और दूसरे मास की शुरू की वेलोसिटी, ये होना चाहिए बराबर। अब देखिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास तो वही रहेगा, अब वेलोसिटी चेंज हो गई, राइट, पहले पार्टिकल की, दूसरा मास m2 और उसकी दूसरे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी। अब मैथमेटिक्स को लिखो, देखो कितना सुंदरता है इसमें। आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो दिस मास है, दिस इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये तो चल ही नहीं रहा, तो इसका मैथमेटिक्स क्या होगा, इसकी जगह आप जीरो पुट कर सकते हो कि ये तो चल नहीं रहा भाई, तो इसका मतलब ये जीरो आ जाएगा। तो आपके पास इस सिचुएशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये होगा mb1i इज इक्वल टू m1b1 फाइनल प्लस m2b2 फाइनल। सो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो शुरू का मोमेंटम होगा टकराने से पहले और टकराने के बाद मास इनटू वेलोसिटी का जो आंसर है वो स्ट्रिक्टली सेम आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। अब हम इसका मैथमेटिक्स करते हुए कुछ आगे बढ़ते हैं और इसके लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा। ओके सी, अब हम आगे चलते हैं। हम इस घटना को कुछ इस तरीके से कर रहे थे कि हमारे जो दो मासेस हैं उसको अब मुझे फिर इस पेज पर बनाना है। देखिए फर्स्ट आपका ब्लॉक और आपका सेकेंड मास एंड दिस इज द टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, this is the time of collision when two will collide one with one another. This is the position of the first mass, this is the position of second mass after collision, right? So it will take very small time to this is the reference line and this will go in this direction, and this will go in this direction. This is another mass, right? So well, this is mass m1 and its initial velocity is v1i, and this is mass m2 and its initial velocity it is equal to 0, and this is the time of collision. At the time of collision, this is delta t, this mass is m1, this mass is m2, and the force on this mass is force on first mass because of second mass, and this is the force on second mass due to first mass, equal and opposite, and this is mass m1, and this is the final velocity of mass m1, and this is the final velocity of mass second. So you have to think about this process. Now this is very very interesting. As I'm enjoying, I hope that you're also enjoying this process. देखिए अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे थे, तो उसमें जो मोमेंटम है वो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में एक चेंज आता है, और ये जो चेंज आता है, अब जरा गौर से देखिए, यहाँ जो मास m1 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1i और यहाँ उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। अब वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं होती, यदि वेलोसिटी चेंज होती है तो ये देखिए एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ है, इसकी यहाँ वेलोसिटी u है, इसकी यहाँ वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यदि वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ हमेशा एक्सेलरेशन होता है, और ये एक्सेलरेशन को आप मास से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब वहाँ हमेशा फोर्स होता है। So this change in velocity in mass m1 is because of this part. Force on the first mass because of the second mass. But see here, शुरू में जो second mass है वो state of rest में है, और जो collision के बाद उसकी जो velocity है v2f हो गई है, तो ये जीरो से इसकी velocity, जीरो से इसकी velocity में कितना चेंज आया, v2f, और ये चेंज कौन लेके आया, ये चेंज लेके आया force on the second mass because of the first mass, right? So ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, मोमेंट पहले का भी मोमेंटम चेंज हुआ
शुरू में उसका मोमेंटम था m1v1i और बाद में उसका मोमेंटम हो गया m1v1 फाइनल, राइट। सो दिस चेंज इन मोमेंटम, दिस डेल्टा p1, मैं यहाँ लिखता हूँ दिस चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p1, इसको हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम m1v1 फाइनल माइनस m1v1 इनिशियल, ये ऐसे आता है ना चेंज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। और ये किसके बराबर आया, आपने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी है कि दिस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम सेज दैट f delta t is equal to change in momentum, means it is equal to p2 minus p1. This is what you have studied in impulse momentum theorem. So delta p1 is the change in momentum, right, final momentum minus initial momentum. This is equal to, ये आपको हमने explain किया, this is due to force on first mass because of second mass, and this force for a small time delta t. So this is the form, this is impulse, and change in momentum is also impulse, so impulse is equal to impulse. यहाँ आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर सकते हैं। ओके, मजेदार बात। अब हम चलते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल m2 इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, इसका कितना है, दिस इज m2b2 फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम है उसका m2b1 इनिशियल, राइट। और इसको पैदा करने का कौन जिम्मेवार है, मोमेंटम कैसे चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। आपको प्रैक्टिकली देखना है कि हो क्या रहा है यहाँ। दिस इज F21 टाइम, इस छोटे से समय के लिए जब वो टकराए और ये फोर्स पैदा हुआ, इस फोर्स ने मोमेंटम चेंज किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम देखते हैं, वहाँ आपने पढ़ा था कि जब दो चीज़ें टकराती है, सो पहली बॉडी जो दूसरी पर फोर्स लगाती है, जो दूसरी पहली पर फोर्स लगाती है, वो बराबर होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो बराबर होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिए। अब 3 इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, फिर रिजल्ट देखिए। तो चेंज इन मोमेंटम को आप कैसे लिख सकते हैं, ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू सी, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू F12 डेल्टा T, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ देखिए डेल्टा P2, ये क्या हो जाएगी, अब आप F21 की जगह क्या लिख सकते हो, F21 की जगह आप लिख सकते हो माइनस ऑफ F12 टाइम डेल्टा T, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब इक्वेशन नंबर 5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा माइनस डेल्टा P2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा F12 डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 6। अब आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 का इस्तेमाल करिए। अब देखिए, इसमें जो राइट हैंड साइड है F12 डेल्टा T है, इसमें भी राइट हैंड साइड F1 डेल्टा T है। यदि इन दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए हम वी कैन राइट नाउ, see here from equation 4 and 6, from equation number 4 and 6, इक्वेशन नंबर 4 और 6 से आप क्या लर्न करते हैं, देखिए डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P2। सो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0। So now you can substitute the value of delta P1। अब डेल्टा P1 की वैल्यू जा रहा है, यहाँ से पुट करिए, ये आपके पास आ जाएगा M1B1 फाइनल माइनस M1B1 इनिशियल, दिस इज डेल्टा P1, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस अब यहाँ से उठाइए आप
M2B2 फाइनल माइनस M2B2 इनिशियल, दिस इज इक्वल टू 0। अब जरा खोल दीजिए इसको और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को आप अलग कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा दिस इज M1B1 फाइनल माइनस M1B1 इनिशियल प्लस M2B2 फाइनल माइनस M2B2 इनिशियल इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप फाइनल वाले पार्ट और इनिशियल वाले पार्ट को आप अलग अलग कर दीजिए। यू विल हैव वन वाला पार्ट हम यहाँ लिखते हैं, इनिशियल वाला पार्ट M1B1 इनिशियल प्लस M2B2 इनिशियल इज इक्वल टू M1B1 फाइनल प्लस M2B2 फाइनल। सो सी हियर केयरफुली नाउ, आप यहाँ देख सकते हो बड़े गौर से कि ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द इनिशियल मोमेंटम, this part is the initial momentum and this part is the final momentum. So this is the law of conservation of linear momentum, right? So I think this is so interesting to do it, and we will now go on to discuss about elastic and inelastic collisions, right? चलते हैं अगले पेज के ऊपर और we'll discuss now about the new page. Now, well, we will discuss now about, we have studied about the law of conservation of linear momentum. So now, here we will discuss about the law of conservation of energy during the collision. So we will discuss about law of conservation of energy during collision. क्योंकि हमने इन दोनों के बारे में ही चर्चा की थी कि ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो ड्यूरिंग एनी फिजिकल प्रोसेस चेंज नहीं भी होती है। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। हम मोमेंटम के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी तरह के कोलिजन प्रोसेस में जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, पर ये एनर्जी के केस में ऐसा नहीं होता। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट नेसेसरली कंजर्व। तो पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो हम ये लिखना चाहेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम not necessarily conserved। ये ज़रूरी नहीं है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इसका हम उदाहरण देके आपको बताते हैं कि देखिए, जब आपके पास फॉर एग्जांपल कि दो बॉल्स हैं, देखिए ऐसे दो बॉल्स हैं और ये आप बार बार एक कोलिजन का एक एग्जांपल ले लीजिए। अब when these two balls will collide with one another, then what will happen? बट आप कॉमन सेंस से लगाइए। आपके पास एक मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 आई, इनिशियल वेलोसिटी ये है। दूसरा मास है और ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मास है v2 आई, और इस स्टेज के ऊपर वो टकराती है। जब वो टकराती है, चाहे वो बिलियर्ड बॉल्स हों, चाहे वो मार्बल्स हों, चाहे वो कैरम की गुटियाँ हों, तो आप ये देखेंगे कि जब दिस इज़ बॉडी वन, दिस इज़ बॉडी सेकंड, जब सेकंड बॉडी के ऊपर फर्स्ट बॉडी फोर्स लगाएगी और फर्स्ट बॉडी के ऊपर सेकंड बॉडी फोर्स लगाएगी, तो दो चीज़ें होंगी, एक हीट जनरेट होगी और दूसरा साउंड जनरेट होगी, टक की आवाज़ आएगी। आपने अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था, हीट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ ऑल्सो द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ यदि इसकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1b1i स्क्वायर है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m2b2i स्क्वायर है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। अब यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
ये कोलिजन प्रोसेस फॉलो करता है, तो टकराने के बाद क्या होना चाहिए, टकराने के बाद इनकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम ही होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। और ये हुआ मास m1, ये हुआ मास m2। अब यहाँ इसकी यदि वेलोसिटी है, सो b1 फाइनल हो जाए और ये b2 फाइनल हो जाए, तो इसको हम, इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, टकराने के बाद 1/2 m1 b1 फाइनल स्क्वायर एंड 1/2 m2 b2 फाइनल स्क्वायर। अब आप अपना अंदाज़ा लगाइए कि क्या होने वाला है। देखो यहाँ मान लो कुछ, जैसे उदाहरण के लिए मैं मानूं कि इसकी कोई एनर्जी यहाँ 10 जाउल है और इसकी यहाँ कोई एनर्जी जो है 15 जाउल है, तो शुरू में एनर्जी कितनी होगी, 10 जाउल और 15 जाउल, ठीक है, इट 10 जाउल और 15 जाउल, तो ये हो गया 25 जाउल। तो टकराने से पहले आपके सिस्टम में जो दो मासेज हैं उनकी कुल एनर्जी है 15 जाउल। अब ये हीट और साउंड भी एनर्जी है। मान लो यहाँ जो 10 जाउल, या हम मान लेते हैं 5 जाउल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेस्ट हो गई। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब यहाँ जो एनर्जी बचेगी वो सिर्फ 20 जाउल ही बचेगी। ये कितनी होगी, ओनली 20 जाउल। अब आपको समझ आ गया कि जब भी कभी दो चीज़ें टकराएंगी तो टकराने के बाद वो आवाज़ पैदा करती है और हीट पैदा करती है। इसलिए जनरल केसेस में जो नेचुरली हमारे समाज में जब दो चीज़ें टकराती हैं, किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं, जैसे हमने कुछ डिस्कस आपके साथ किए हैं, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है इनिशियल टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर नहीं हो सकती। इस एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। पर फिर भी हम मैक्रो लेवल पर चीज़ों को देखते हैं। मैक्रो लेवल का मतलब जो बड़े स्तर पर हम यदि चीज़ों को देखते हैं। यदि हम माइक्रो लेवल की बात करें तो कभी बार ऐसा हो भी सकता है कि दो चीज़ें एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि कोलिजन के टाइम दो चीज़ें एक दूसरे के साथ फिजिकली टकराएं। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी तक मुझे सिर्फ जो आपका स्कोप ऑफ द बुक है उसके अकॉर्डिंग बात करना है। तो उस स्टेज पर यदि हम देखें तो कई बार जो चीज़ें हैं वो फिजिकली कंटेक्ट के बगैर भी हम उसको कोलिजन कंसिडर कर लेते हैं। सो उस स्टेज पर ना तो हीट होगी ना साउंड होगी। अच्छा, यदि ऐसा होगा हीट और साउंड उस स्टेज पर पैदा नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेज के ऊपर कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए, ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। अब आप इसको बड़े ध्यान से समझ जाएंगे। मैं एक मैक्रो लेवल का एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, आप एक रिंग ले लीजिए, एक मास ले लिया आपने इस तरीके का, और जो दूसरा मास है वो इस तरीके का है, राइट। अब इन दोनों मासेस को हमने एक स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया है। वी हैव कनेक्टेड these two masses with a very flexible spring, right? So this is mass m1 and this is mass m2. Now this mass m1 will move toward this direction, mass m2 will move toward this direction. So this mass has some velocity v1i and this mass has some velocity v2i. So these two masses will come close to one another like this. ये दोनों मासेस एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाएंगे, and when they come close to one another, then because of the restoring force they regain their after coming close to one another, after colliding, physically contact में नहीं आएंगे, but they collide with one another, and after collision they will regain their original position. और थोड़ी देर के बाद वो दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर चले जाएंगे। इसमें क्या हुआ, इसमें ना तो हीट पैदा हुई ना तो साउंड पैदा हुई। ऐसे कोलिजन को हम
इलास्टिक कोलिजन कह देते हैं। इसमें जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगी। पर एक बड़ी मजे की बात आपने ध्यान रखनी है कि जब ये दोनों रिंग एक दूसरे के साथ जो थ्रू ए एक्सटेंसिबल स्प्रिंग के साथ जुड़े हैं, वो क्या वो एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ध्यान रखना आपने, एट द टाइम ऑफ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। बाद में ये रीडिस्ट्रीब्यूट होकर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी, बट एट द टाइम ऑफ कोलिजन this kinetic energy is not constant. So this is the example of elastic collision. So the question is whether the collision is of one kind? No. So the question is whether the collision is of only one kind? No. So there is another kind of collision is also possible over there. I will take one more example. देखिए, एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक small, you will have small ring and then there is a small block. एक mud का block है, this is a block made up of mud. This is okay. Now what will happen, ये जो this mass is moving toward this is mass m1 and this is mass m2. This is moving with the velocity b1i and this b2i, this is equal to 0. You can take an example. उसके बाद क्या होता है, ये दोनों टकराते हैं. After some time both of these collide with one another. This block, it's at the time of collision. It's at the time of collision. This is mass m1 and this mass is m2. But after collision, what will happen? This block and they both move as a single body. ये दोनों इकट्ठे होके एक बॉडी की तरह मूव करते हैं। माने इसका जो वेलोसिटी है v1i है और इसका ये रेस्ट में है, इसलिए हमने लिख दिया कि जो v2i है वो 0 है। इट इज़ एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन के समय का है। और उसके बाद क्या होगा, इसका जो टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 एंड दे विल हैव द कॉमन वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, राइट। सो सच कोलिजन इज कॉल्ड completely inelastic collision. This collision is called completely inelastic collision. अभी हमने पढ़ा था elastic collision and this is now inelastic collision. So inelastic collision क्या हुआ, when two bodies collide with one another and after the collision both of these body move as a सिंगल बॉडी। तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ, जो इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी, ओके, बिकॉज दे कम इन फिजिकल कंटेक्ट विद वन अनदर, दे विल प्रोड्यूस हीट एंड साउंड। तो उसके आपको पता है कि उससे फिर एनर्जी भी जरूर वेस्ट होगी और ये कंजर्व नहीं रहेगी। तीसरा कोलिजन है जो मोस्ट कॉमन समाज में होता है और यही बेसिकली मैक्सिमम केसेस में यही कोलिजन होता है। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम so easily here, this is the first mass m1 moving with this velocity v1i and it is now colliding with this second mass और इसकी जो initial velocity है वो 0 है और इसमें they fly off in this different directions. So the mass m1 will move in this direction and mass m2 will move in this direction. So they will lose their energy. They will lose their energy here in the form of heat and sound. They will lose their energy in form of heat and sound. So this initial kinetic energy
kinetic energy initial is not equal to the final kinetic energy. So this collision is called elastic collision. So this collision is called inelastic collision. This is the example of this is the example of, so this collision is the example of, this collision is the example of inelastic collision. Inelastic collision. So in case of inelastic collision, momentum is conserved and kinetic energy not conserved, right? So you are left with the elastic collision, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इलास्टिक कोलिजन. तो उसको आप मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हो. मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. So this is all about the elastic and inelastic collisions, right? So now we will move further.